Hello everyone, welcome to my channel IELTS Easy with Priya. This is your friend and an IELTS instructor Priya. So today we are about to study modals. Why it is important to learn about modals? These are very important part of communication. There are various reasons. First of all, what modals answer? इससे हमें क्या पता चलता है? If you are accurate or if you know accurately to apply or to use modals, you can convey a really clear message to the person as it indicates or clear the attitude of the speaker towards something. For example, if I say you should deposit your fees, for example, somebody says you should, or you should gargle to improve your throat. Fine. This sentence states आपको अपना गला ठीक करने के लिए gargle करना चाहिए. This is an attitude of the speaker, a normal attitude of the speaker that tells you about you should throw, you should gargle. Fine. Number 2, you must gargle to improve your throat. For example, now this attitude of the speaker tells that now it is mandatory for you to gargle if you actually want to improve your throat or to make your throat better. So 2 words make a great difference. To understand this disparity, to convey a really clear message to the receiver, to the reader, to the listener, it is really important to understand or know about modals. So this is the first thing that we have discussed about a normal discussion, but modals play a crucial role in your IELTS too. For example, if you suggest someone about something, a huge disparity, a huge difference can be created with these. This is called the game of words, I must say. So it is very important. So now, without wasting your time, without taking more time, we are about to continue what are modals and how to use them in your daily life and of course in your interview or in your IELTS. So here we see, we have categorized modals. देखिए, first modals are should, ought to and must. Fine. Next are can, cannot, could, couldn't, will be able to or will not be able to. 3. Again can, cannot, could, couldn't, may, may not, might, might not. Again can, may and could. So how will you be able to understand, to keep them in mind, ताकि आप उसे भूले ना. हमने उसे कैटेगराइज किया है and gave them a title. It is nap. N-A-P. Nap. Do you understand what is nap? जो हम दोपहर को या in between we have a short sleep of 10 to 15 minutes, relaxation of 10 to 15 minutes so that we can feel re-energetic to pursue the things we were already pursuing. So keep in mind the word nap. And suggests necessity. Necessity means जरूरत, किसी चीज को करने की जरूरत. So ये वाले जो modals हमने यहाँ पे लिखे हैं, they will tell you a different meaning कि जरूरत मतलब चाहिए, इनका ये मतलब है. We will study it in detail. Next is ability. Ability means आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत. मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी. तो उसको बताने के लिए जो modals का यूज होता है, those are can, cannot, could not. ऐसे. Number 3 is possibility. Possibility is संभावना, जिसको आप कहते हो कि किसी चीज
को करने की ये पॉसिबिलिटी है। और परमिशन, परमिशन क्या होता है, किसी को परमिशन हम मांगते भी हैं, किसी को परमिशन हम देते भी हैं। सो गिविंग एंड टेकिंग परमिशन बोथ हैव डिफरेंट मोडल्स। सो नाउ आई होप दिस बेसिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अभी हम शुरू करने वाले हैं। We will be understanding the difference of modals of necessity first of all. Let us see, before starting with the exercise or to understand the concept, you should understand what is the rule of modals. Modals are also called auxiliary verbs. So, इसको लिखने का क्या structure है? You have to write down subject, then a modal, then first form of verb and object. Always keep in mind that a modal is always followed by first form of verb or present participle. यहाँ पे कभी भी past participle और perfect participle means second form of verb और third form of verb कभी भी use नहीं होगा. Keep it as a note in your mind. अभी देखिए, तीनों का मतलब है चाहिए, should चाहिए, ought to चाहिए, must चाहिए. How will you understand that these are different in use? आपको कैसे पता चलेगा कि एक वर्ड को अलग तरीके से यूज करने से आपकी टोन, आपका एटीट्यूड, द मीनिंग ऑफ द मैसेज यू वांट टू कन्वे पूरी तरह से चेंज हो जाएगा. देखते हैं. शुड का मतलब है चाहिए. जैसे हमने अभी एक एग्जांपल किया. वी ऑल नो दैट इन आवर इंडियन फैमिलीज देयर इज ऑलवेज अ डॉक्टर एट एवरी फैमिली और इन आवर नेबरहुड. कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हर किसी को चलते फिरते सजेशन दे देते हैं, किसी को भी. अब वो इम्प्लीमेंट हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं है. किसी को भी तुरते फिरते चलते फिरते नॉर्मल सजेशन, जो कि हम लोगों की आदत है, ह्यूमंस आर हैबिचुअल ऑफ. तो देखिए शुड, देखिए हमने इसको देखा है. यू शुड टेक. हमारे सबके घरों में ये एक होम रेमेडी की तरह यूज किया जाता है कि हमें गला दुखने पे क्या करना चाहिए. यू शुड टेक जिंजर एंड हनी. देखिए फॉर्मेट, subject, doer, should is a modal, take is a verb, this is the object. हमें क्या लेना है. अब इसके साथ you have to understand must. देखिए, you just followed the advice given by the family members or the neighbors or your friends or your relatives कि भाई गले में दर्द है और मैंने जिंजर हनी ले लिया है, लेकिन the condition of your throat has worsened, बहुत बुरे तरीके से गला खराब हो गया है. तो अभी वही लोग आपको कहेंगे you must consult your doctor. यहां पे जो must है, it is not at all a suggestion. It is not at all an advice. करो या ना करो वाली कंडीशन नहीं बची है. इस पे जरूर काम करना है. तो emphasis, if a sentence is said this way or it is said this way, government should take this law back. गवर्नमेंट को ये लॉ वापस लेना चाहिए. अब ले भी लेगी तो भी इट्स ओके, नहीं भी लेगी तो भी इट्स ओके. सेकंड देखिए, गवर्नमेंट शुड लिमिट और रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली. अभी नॉर्मली हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए. गवर्नमेंट करे या ना करे, इसमें अभी हमारा कोई इतना बड़ा फोर्स नहीं है, एम्फेसिस नहीं है. लेकिन जब we have started facing problems related to overpopulation, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो
ट्रैफिक है, चाहे वो इंक्रीजिंग और बर्जोनिंग पॉल्यूशन है, तो उस टाइम पे हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं दिखता, उस टाइम पे पॉपुलेशन को कम करना बहुत जरूरी बन जाता है, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट मस्ट लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली टू 1। एक बच्चे तक, मस्ट मतलब 100% एम्फेसिस, हम उस पर जोर दे रहे हैं, और अब वो क्या बन गई है, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। देखिए डिफरेंस, यहां पे एक नॉर्मल सजेशन, यहां पे 100% सजेशन। अब लेट अस कम टू ऑट टू। इसका मतलब भी चाहिए ही होता है। हम इसको यूजली डिफरेंशिएट करते हैं व्हेन वी हैव टू यूज इट फॉर स्पेसिफिकली moral duty or any duty that is our, you know, sometimes we say कि we have to do this, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है। what type of duties, what type of moral duties one has to, ethical इसमें थोड़ा सा इंक्लूड हो जाता है। for example, we ought to obey our elders, we ought to serve our country, यहाँ पे it becomes your duty, it becomes your responsibility to do something that is your moral duty or it is your ethic. अब हम इसको शुद्ध के साथ रिप्लेस कर सकते हैं IELTS राइटिंग में when the meaning relates to that. For example, parents should provide their children what? A better education. Parents should provide their children a better education, अच्छी पढ़ाई। तो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज देयर ड्यूटी। यहां पे आप इसको ought to के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज मोडल्स कंप्लीटली। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पीपल शुड रिड्यूस what they should reduce? The generation of वेस्ट। जो वो इतना वेस्ट पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डेली, लोगों को उसे कम करना चाहिए। सी, एज वी आर कंसर्न्ड विद द इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन, सो दिस इज यूजुअली सेड बाय वन एंड ऑल। अगर हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, पीपल शुडंट रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट, नहीं, लोगों को कोई जरूरत नहीं है। इसी का इंटरोगेटिव question, should people reduce the generation of waste? क्या ये करना चाहिए? ऐसा करने से ये ठीक हो सकता है? तो 3 ways। अगर आपने WH फैमिली से कनेक्ट करना है तो आप पूछ सकते हैं, what should people do to control pollution? लोगों को क्या करना चाहिए? तो it can be an answer to something like people should reduce the generation of waste. इस तरीके से आप इसको should के साथ यूज करेंगे। Imagine the situation has become grave. Government has imposed a fine, a heavy amount of fine on the amount of waste generated or produced. सरकार कह रही है कि अगर आप इससे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करोगे तो आपको फाइन लगेगा, क्योंकि सिचुएशन क्रोनिक हो गई है, सिचुएशन ग्रेव हो गई है, लेवल ऑफ पोल्यूशन पीक पे आ गया है। तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा वो? पीपल मस्ट। अब यहां पे ये सिर्फ एक नॉर्मल सजेशन नहीं बच जाता, ये एक कंपल्शन बन जाता है। शुड फॉर ए नॉर्मल सजेशन,
उसमें से कितने कर रहे हैं, कितने नहीं अडॉप्ट करते, डजंट मैटर। मस्ट में क्या है? सो नाउ इट बिकम्स अ कंपल्शन, अ नेसेसिटी, एन ऑब्लिगेशन। तो ये आपको उस टाइम पे मस्ट के साथ रिप्लेस कर देना है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, I make sure you will never lose your score in conveying a clear message to the reader, whether it is IELTS writing, whether it is IELTS speaking, or it is a normal communication or a conversation that you have with someone. For example, you are a parent. अब आपने अपने बच्चे को कहना है you must not do this. हम कभी कभी थ्रेटन करते हैं इंडियन पेरेंट्स और पंजाबी पेरेंट्स, दे आर यूजुअली इन द हैबिट ऑफ सेइंग सच थिंग्स कि आज तो बात बिल्कुल नहीं करना, मेरे को ये नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट डू दिस। सिंपली पहले पेरेंट्स करते हैं यू शुडंट डू दिस, यू शुडंट डू दैट। तो वहां पे एक मीनिंग क्लियर करने में आपका एटीट्यूड बता रहा है कि आपकी तरफ से फोर्स और इंटेंशन टू कंट्रोल समथिंग इसके साथ क्लियर हो रहा है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। लेट अस सी द सेकंड थिंग। व्हाट alphabet it was? It was A. A stands for ability. Ability stands for your capability, your capacity, your क्षमता, आपकी ability। क्या आप उसको कर पाते हो? नहीं कर पाते। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कौन से हमारे मोडाल्स थे? कैन, कैन नॉट एंड विल बी एबल टू। अभी देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम और मैडम और किसी से भी आई कैन रन फास्ट। कुड हम भूल गए, कुड भी इसमें होता है। कैन, कैन स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट एबिलिटी। ये आपकी अभी की प्रेजेंट एबिलिटी है जो आप कर सकते हो। मैं तेज दौड़ सकती हूं, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी कैपेसिटी, हमारी फिजिकल, मेंटल। आई कैन इनवाइट हिम, मैं उसे इनवाइट कर सकती हूं। ये हमारी कैपेसिटी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ड्राइव अ कार। जब आप में वो कैपेसिटी नहीं है, ये कैन किस में चेंज हो जाएगा? नॉट में। आई कैन नॉट। देखिए, राइटिंग में यू हैव टू यूज दिस कैन नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज एब्रिविएशंस, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग एंड यू हैव टू बी फ्लुएंट, हम इसको कांट बोल सकते हैं। आई कांट रन फास्ट फॉर बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू, आई कैन नॉट रन फास्ट नाउ। अभी मेरी ये कैपेसिटी नहीं है। अब आई कांट रीड इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें इंग्लिश में क्वेश्चन समझ आ जाता है, बट आई कैन नॉट आंसर बैक इन इंग्लिश, और आई कैन नॉट रिप्लाई। मुझे इंग्लिश में रिप्लाई देने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यू आर नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग दैट, ये आपकी कैपेसिटी नहीं है। आई कैन नॉट अटेम्प्ट reading part, I cannot attempt MCQs, I cannot attempt true, false and not given, I cannot understand why you are behaving so। तो यहाँ पे प्रेजेंट का ही पॉजिटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव हमने इस तरह से क्लियर किया है। लेकिन अगर आपने अपनी पास्ट की
एबिलिटी के बारे में बताना है तो आप इसमें बोल सकते हैं आई कुड देखिए आई कुड रन फास्ट, मैं भाग सकती थी। आई वॉज कैपेबल इनफ ऑफ रनिंग फास्ट। पर अब क्या हो गया, आई कैन नॉट रन, अभी नहीं कर सकती। पहले पास्ट में व्हेन आई वॉज यंगर, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, मैं तेज दौड़ सकती थी और व्हेन आई वॉज टेकिंग एक्सरसाइजेस डेली, तो याद कर सकते थे। दिस वॉज द एबिलिटी ऑफ योर पास्ट। प्रेजेंट में आई कैन नॉट रन नाउ। I could not speak English fluently. मैं बड़े ही फ्लो में इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, बट नाउ आई कैन। तो ये बता रहे हैं बट नाउ आई कैन, अब मैं बोल सकती हूँ आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, आई गॉट द लेसन फ्रॉम दिस टीचर, आई ट्राई टू हैव अ कमांड ऑन दिस लेसन। पहले मेरे पास एबिलिटी नहीं थी, अब मैं उसमें कैपेबल हूं। तो समझ आया कुड का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज विल बी एबल टू। इट टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर पार्ट। फ्यूचर पार्ट आई विल बी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी आप कह रहे हो कि आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, मैं नहीं बोल सकती थी, बट नाउ आई कैन, अभी मैं बोल सकती हूँ स्लोली। बट इन फ्यूचर, और बट फ्यूचर बोलने की जरूरत नहीं है, आई विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश सून। अब यू आर नॉट गेटिंग योर बैंक, अब आप कह रहे हो कि आई कांट गेट माई required score in IELTS, but I will be able to clear or ace this exam or nail this exam soon. यहाँ पे पता चल रहा है कि we are talking about कि मेरे में ये capability हो जाएगी। I will be able to do this. Hope by it this concept is absolutely clear to you all. Look friends, ये समझना इतना जरूरी है, इट डज नॉट हैम्पर योर कम्युनिकेशन। देखिए एक छोटे से वर्ड से हमारा पूरा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। सो इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ लॉट ऑफ a quite sufficient part of this chapter is left now that you will be getting in the next video. And if you have any queries, do not forget to post in the comment box. And if you like my video, please subscribe and share it with your friends, and definitely don't forget to press the bell icon so that you can stay connected and get updated with every lesson that we are posting specially for you. आप अपना IELTS का ड्रीम to get the score, आप अपना communication का ड्रीम, if you feel hesitating, if you feel scared, if you don't have time to continue classes, if you don't have time to understand, whatever difficulty, whatever obstacle is in your way to learn, please subscribe our channel. You will learn a lot. I make sure that this will not at all, learning English will not at all be so difficult for you. Remember guys, this is only a test of language. It is not a test of knowledge. So don't feel low, don't feel poor, don't feel inferior in front of anyone if you don't know this language. This can be learned with easy steps. Hope you like this. Thank you and goodbye.